Hello, welcome to today's class. Today we are going to discuss three concepts: unification of Germany, unification of Italy, and formation of Britain as a nation state. Now let us first take the unification of Germany. You may get the question: describe the different phases of unification of Germany. As we saw beforehand, in 1848, the liberal middle class, they tried to unify Germany under the leadership, as a leader of King Wilhelm I. That is called Frankfurt Parliament. Here you will see, as you have seen, the nationalist feeling were widespread among middle class Germans who in 1848 united the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. इलेक्टेड पार्लियामेंट रहेगा, उसके अंडर में राजा को बोल रहे थे किंग विलियम फोर्थ को आज किंग रहेंगे. सो ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट. दैट वाज अ फेलियर. दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो आपको फेजेस ऑफ यूनिफिकेशन जर्मनी आएगा. दिस इज द फर्स्ट फेज. दिस लिबरल इनिशिएटिव to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers. Junkers means they are landowners, large landowners को Junkers कहते हैं जर्मनी, प्रशिया में, और प्रशिया. From then on, that was the first phase. From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. So here the Chief Minister Otto von Bismarck, the architect of this process, carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. अभी ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होगा, ये प्रशिया लीडरशिप से होगा, और प्रशिया का चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, उसके लीडरशिप में होगा. नाउ 3 wars over 7 years with the war with Austria, war with Denmark, war with France ended the Prussian victory and completed the process of unification of Germany. In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed as the emperor of Germany, held at Versailles. ये यहाँ तक आपको बुक में ये दिया गया है. Now how you will remember? First thing, you must know who was the architect. The architect was Otto von Bismarck. अगर architects मांगेंगे then you can write William I also you can add. Then सबसे पहले आप लिखोगे there was no Germany. Here Germany नहीं, the person there is no Germany. This Germany was a confederation of this is Württemberg, Schleswig-Holstein, Hanover, Prussia. ये सारे एक एक, all these are confederation of 39 states. This is Austrian Empire. ये Austrian Empire है. तो ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर में भी कुछ एरिया वाज देयर. तो 39 कॉन्फेडरेशन थे. पहला आप ये लिखोगे, 2-4 इनका एग्जाम्पल दे दोगे. देन यू विल कम हु वाज द लीडर. आर्किटेक्ट थे ऑटो वन बिस्मार्क. देन उनका पॉलिसी था, यू राइट ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मतलब वार. और लीडिंग स्टेट एमोंग दो स्टेट्स, द लीडिंग स्टेट वाज प्रशिया, बिकॉज प्रशिया का चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क. जो ऑटो वन बिस्मार्क ही लीडिंग ले रहे हैं तो लीडिंग स्टेट प्रशिया ही होगा, एंड प्रशिया. देन नेक्स्ट पेज में वो 3 wars में फर्स्ट वार विथ डेनमार्क, देन वार विथ ऑस्ट्रिया हंगरी,
एंड वार विथ फ्रांस। फ्रांस के साथ लास्ट लड़ाई हुआ इन 1870 एंड 1871 में द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन a ceremony held at Versailles. Here it is the Versailles proclamation of German Empire. Proclamation of German Empire, Hall of Mirror in Versailles. It is, this picture certain times comes. The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Russia's state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany. तो यहाँ पे जर्मन यूनिफिकेशन में प्रशिया का लीडरशिप रहा चला. दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. नेक्स्ट रहेंगे इटाली यूनिफिकेशन. जर्मनी यूनिफिकेशन में मेन लीडरशिप वन मैन, इट वाज बिस्मार्क. हियर वी विल फाइंड थ्री मैन, मैजिनी, गैरिबोल्डी, मैजिनी, केवर, गैरिबोल्डी. तो इटाली भी जैसे देयर वाज नो इटाली, यार यू कैन सी द मैप, नो इटाली. जो इटाली पोर्शन अभी इटाली है, इटाली नहीं है, इसमें है वेनेशिया, लोम्बार्डी, सिसिली, सार्डिनिया, ये भी सार्डिनिया है. दिस इज ऑल्सो सार्डिनिया, ये भी सार्डिनिया है. ये टू सिसिलीज, ये पापल स्टेट है, टस्कनी, मॉडर्ना, 7 स्टेट्स आर देयर. पहला सेंटेंस में आप लिखोगे यूनिफिकेशन ऑफ इटाली का जो आएगा, देयर वाज नो इटाली, इटाली वाज मेड अप ऑफ 7 स्टेट्स. नाउ देयर आर 7 फ्रेगमेंटेशंस. ये फ्रेगमेंटेशन में मैन लीडिंग स्टेट लेगा, ये जो है सार्डिनिया, पिडमोंट, ये पिडमोंट, सार्डिनिया, ये जो है इट विल टेक द लीडिंग रोल, क्योंकि वहाँ का जो है केवल. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इट वाज द वर्क ऑफ 3 मैन. मैजिनी आप पढ़े हुए हो, ही वाज रिवोल्यूशनरी, ही फॉर्म्ड यंग इटाली. So, like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. The political fragmentation was 7 fragmentation was there. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire, मतलब ऑस्ट्रिया में उसका कुछ हिस्सा था. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which ये वाला पोर्शन जरूर लिखना. Italy was divided into 7 states. Only one Sardinia Piedmont was ruled by the holistic empire, ये वाला. Under in the north was under Austrian Habsburg. जो लोम्बार्डी, सिसिली, वेनेशिया ये थे, लोम्बार्डी वेनेशिया वो थे ऑस्ट्रियन एम्पायर में थे. द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप. हियर इट इज, यू कैन सी इट डस. ये है ऑस्ट्रिया अंडर में थे, ये पोप के अंडर में थे, पापल स्टेट्स. ये रहा होगा, ये स्पेन के अंडर में, स्पेनिश के अंडर में. तो इटाली तो हो गया. द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द साउदर्न रीजन्स वेर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म. यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज अभी जैसे इटालियन लैंग्वेज है वो भी नहीं था. ये पहला इनिशियली आपको प्रेजेंट करना है, नहीं था करके, तभी तो आप आएंगे ना. जर्मन में भी, इटालियन केस में भी आप पहले उनका बिफोर यूनिफिकेशन क्या कंडीशंस था, दैट देन कम फर्स्ट में जाएगा. ड्यूरिंग 1830 गिउसेppe मैजिनी हैड sought to put together a coherent program in Italian and he had formed the Young Italy. He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. लेकिन उस समय में क्या होगा, 1830 और 1848 रिवॉल्यूशन से फेलियर हुआ, सो इट कुड नॉट बी. बट मैजिनी एक इमोशनल डेवलपमेंट किए थे, मेंटल माइंड सेटअप कि एक इटाली फॉर्मेशन हो.
इसीलिए आपको कहा जाता है मजीनी वाज द माइंड, कैवर वाज द ब्रेन, गारिबोल्डी वाज द सोड। इटाली यूनिफिकेशन में कहा जाता है। तो ये पहले माइंड सेटअप, यंग जनरेशन, यंग माइंड को वो प्रिपेयर किए थे। दो कोई उनके समय में फिजिकली कोई यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, बट ही हैड प्रिपेयर द माइंड ऑफ द पीपल टू फॉर्मेशन ऑफ इटालियन स्टेट। नाउ ये जो फेलियर हो गया, आफ्टरवर्ड्स इट फेल ऑन सार्डिनिया पिडमोंट अंडर द रूलर किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट। ये आएगा, इसको ये लोग लेंगे, ऑफर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डोमिनेंस। देन इन्हीं का क्यों कहा गया सार्डिनिया पिडमोंट? सार्डिनिया पिडमोंट का चीफ मिनिस्टर के वो थे। मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटाली। ही वॉज नॉट ए रिवोल्यूशनरी, ही वॉज नॉट ए डेमोक्रेट, जो भी है, केवर विल टेक द लीडरशिप। उनका अब एक पॉइंट है, जैसे ये ही थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेसी अलायंस विथ फ्रांस, वो इसलिए ब्रेन कहा जाता है। engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces in 1859। 1859 में जब फ्रांस के साथ मिला के, मैंने फ्रांस के साथ फ्रेंडशिप मिला के थोड़ा सा, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट करके केवर कुड सक्सीड। एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटाली जो था, लोम्बार्डी, वेनेशिया, दो ये आके ज्वाइन होंगे। दिस विल बी ज्वाइन इन इटाली में, जो सार्डिनिया पिडमोंट के साथ ज्वाइन हो जाएगा ये सारे कंप्लीट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटाली। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ केवर आ जाएंगे। देन हाँ, एंड यूनिफाइड इटाली ऑफर देम पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो सॉरी, यहाँ पे गया, apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। in ये Garibaldi का आएगा। in 1860 only they marched into South Italy and the kingdom of two Sicilies, succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish ruler। And lastly, in 1861, Victor Emmanuel II proclaimed the king of United Italy। However, much of the Italian population, among them rates of illiteracy were high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। तो उनका कुछ लोगों को पता ही नहीं था, बट somehow this is about unification of Italy। लेकिन आपको आगे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, लास्ट है, फाइनल है, you'll find here last phase you can say। in 1867 Garibaldi led an army volunteers to Rome to fight the last obstacle to the unification of Italy, the Papal States। Sorry, the Papal State, ये जो Papal State है ये आएगा 1870 में, ये पापल स्टेट आ गया। दिस विल कम इन 1870। सो ये गारिबोल्डी की कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा। पापल स्टेट्स वेयर द फ्रेंच गैरिसन वाज स्टेशन, द रेड्स आर प्रूव टू बी नो मैच फॉर द कंबाइंड फ्रेंच एंड पापल ट्रूप्स। It was only in 1870 when during the war with Russia, France withdrew its troops। By the time if you remember, फ्रांस के साथ जर्मन का भी लड़ाई हुआ था, रशिया, फाइनल उनका यूनिफिकेशन हुआ, फाइनल वार वही था। उस समय में फ्रांस withdrew its troops from Rome, that the papal states were finally joined to Italy। लेकिन 1861 में विक्टर इमानुएल किंग प्रोक्लेम्ड हो गए थे। then you can join this one also, that is 1870 या 71 इसके बाद ही कंप्लीट यूनिफिकेशन हुआ, पापल स्टेट्स में साथ में लग गया। तो इट इज़ द वर्क ऑफ 3 पीपल।
और उसमें अगर और एक लेना है तो विक्टर इमानुएल सेकेंड आर्किटेक्ट के हिसाब से लिया जा सकता है। जैसे वहाँ पे बिस्मार्क, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बिस्मार्क एज वेल एज विलियम फर्स्ट, यहाँ पे माजिनी, कैवोर, गैरिबल्डी। सीक्वेंस में याद रखोगे आसान रहेगा। माजिनी प्रिपेयर द माइंड, देन कैवोर ब्रेन, फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन करके ऑस्ट्रिया से नॉर्दर्न पार्ट लिए एंड साउदर्न सिसिली, साउदर्न पार्ट जो सिसिली एंड नेपल्स दिखाई थी वो लिए गैरिबल्डी ने। एंड आफ्टरवर्ड्स पपल स्टेट्स ऑल्सो गैरिबल्डी के कंट्रीब्यूशन से ज्वाइन हुआ। दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। देन द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी जो यूनाइटेड किंगडम देख रहे हो, इट वाज नॉट यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे 2 आइलैंड ग्रुप्स आर देयर। एक है ब्रिटेन मतलब ग्रेट ब्रिटेन, अनदर वन इज आयरलैंड। अब जो यूनाइटेड किंगडम है, ग्रेट ब्रिटेन कंप्लीट है और आयरलैंड का लिटिल पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट इज देयर। तो ये अभी यूनाइटेड किंगडम में है। ये जो बना वो जो नेशन स्टेट के रूप में कैसे बना ना, इसका जो केस आएगा, क्वेश्चंस आता है द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपीवल और रिवोल्यूशन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चंस आता है, ये लाइन आएगा और क्वेश्चंस आएंगे। इट वाज ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, एक्सप्लेन। लॉन्ग ड्रॉन मतलब ये जैसे कि 8-10 साल में हो गए थे, 7 years इटाली एंड जर्मनी, लेकिन ये 1688 से शुरू होंगे 17th सेंचुरी में एंड कंप्लीट होगा 19th सेंचुरी में। तो ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस इसलिए कहा जाता है, एक दिन का नहीं है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस इट वाज रेदर देन टू से। तो प्राइमरीली आप क्या लिखोगे, फर्स्ट जो है आपको लिखना है ये सेंटेंस कोट करके, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ, ये जो अभी जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपुल वेयर, एथनिक ग्रुप्स क्या क्या थे, इंग्लिश थे, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश, 4 ethnic groups. Now we find all of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. ये islands में इंग्लिश सबसे डोमिनेट नेशन था। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग जो हैं। ग्रेट ब्रिटेन डिवाइडेड इनटू 3 parts, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। जो हमारे यहाँ पे आए हुए थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड है इसलिए हम ब्रिटिश कहते हैं। एंड दे एज दे केम फ्रॉम इंग्लैंड दे आर नोन एज इंग्लिश। तो इंग्लिश पीपुल उन जहाँ जहाँ ट्रेडिंग के लिए आए हैं, जहाँ जहाँ कॉलोनी बनाए, दोज वेयर द इंग्लिश पीपुल। सो इंग्लिश काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, इंडस्ट्री बना के, कॉलोनी बना के दे बिकेम वेल्दी नेशंस बन गए थे। तो सबसे वेल्दी नेशन में हिसाब से दोज पीपुल वेर देयर, इंग्लिश पीपुल। सो यहाँ पे जो नेशन स्टेट्स बनेगा, इंग्लिश विल बी द डोमिनेटेड ग्रुप। इंग्लैंड में इस पहले क्या था, किंगशिप वॉज देयर, मोनार्किकल गवर्नमेंट, कम्प्लीटली मोनार्क का पावर ज़्यादा था। बट इंग्लिश पार्लियामेंट, ये फर्स्ट फेज, द इंग्लिश पार्लियामेंट which had seized power from the monarchy in 1868 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state of England at its center came to be forged. मतलब पहला हुआ था, इसको कहते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688, जिसमें पार्लियामेंट बना और पार्लियामेंट के पास पावर गया। किंग विल बी देयर, लेकिन पावर ज़्यादा रहेगा किसके पास, पार्लियामेंट के पास रहेगा। तो सबसे पहले इट वाज इन 1688, उसमें वेल्स भी आ गया था। तो ये उनके अंडर में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना इंग्लैंड में। पार्लियामेंट वाज हैविंग मोर पावर। अब बचा स्कॉटलैंड है। नाउ द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707
ये वाला एक्ट ऑफ यूनियन ये 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में एक हुआ एग्रीमेंट, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? इट वाज इन 1707 अंडर व्हिच ट्रीटी? ना एक्ट ऑफ यूनियन, इट वाज इन 1707 में ना स्कॉटलैंड मिला, तो ग्रेट ब्रिटेन कंप्लीट इंग्लिश अंडर में आ गया, तो इसलिए उसे कहा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आइलैंड जो है बना। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स, लेकिन यहाँ पे डोमिनेशन किसका रहा? इंग्लिश मेंबर्स का। द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वेर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands, स्कॉटलैंड एक हाईलैंड्स है, ऊंचा पहाड़ी हिली एरिया है, तो स्कॉटिश हाईलैंड्स suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। चाहने लगे इंडिपेंडेंस लेने के लिए, लेकिन नहीं, वो उन्हीं इंग्लिश अंडर में ही रहे। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गायलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस। पर ब्रिटिश स्टाइल में उनको रहना है, उनका एथनिक ग्रुप्स अलग था। एंड लार्ज नंबर वेर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। अब सेकेंड फेज गया। नेक्स्ट, आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट। आयरलैंड सेपरेट आइलैंड था, तो इसमें भी आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर। आयरलैंड में टू ग्रुप्स ऑफ पीपल थे। क्रिश्चियंस में इट वाज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। Protestants were normally rich, Catholics were normally poor, and in Britain more dominating groups were there, England में Protestants थे। So English helped the Protestants, this is the English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance and over a largely Catholic country. Catholic revolts against British dominance were suppressed. That time it was called Civil War, Civil War of Ireland, आयरिश सिविल वार से कहते हैं। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में हुआ था, तो उसमें कैथलिक प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किए इंग्लिश पीपुल। सो कैथलिक्स डोमिनेंस वाज revolts were suppressed after a failed revolt led by Wolfe and his United Irishmen। फेल्ड रिवोल्ट मतलब उनके साइड्स में इट वाज ए फेल्योर। नॉर्दर्न पार्ट में उसका लीडरशिप कौन लिए थे? वुल्फटन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। द कंप्लीशन हो गया ए न्यू ब्रिटिश नेशन। अब वो ब्रिटिश नेशन का क्या हुआ नाम? न्यू ब्रिटिश नेशन फोर्स थ्रू द प्रोपागेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब उसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। दैट वाज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707। ओनली ग्रेट ब्रिटेन में लिमिटेड था। अब आयरलैंड भी जब मिलने के बाद नाउ इट इज़ नोन एज यूनाइटेड किंगडम, ओनली यूनाइटेड किंगडम। और completed the British nation, formation of British nation. Now the symbols of New Britain, the British flag बनेगा Union Jack. The national anthem, God save our noble king। अभी भी वहाँ पे monarchy है। Though monarch is the nominal head, like our president is the nominal head, तो अभी वहाँ पे भी again in the name of king, योर मैजेस्टी, उसके नाम पे शासन चल रहा है, बट प्राइम मिनिस्टर इज़ द मेन रियल पावर प्राइम मिनिस्टर हैज़। तो सारे जो है नेशनल एंथम है उनके नाम पे, गॉड सेव आवर नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज, अभी उनका मेन कॉमन ये लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, वेर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पैटर्न इन द यूनियन। अभी जो ओल्डर नेशंस में क्या है? आयरिश, स्कॉटिश एंड वेल्स, सबऑर्डिनेट के, तो इंग्लिश डोमिनेशंस में बना यूनाइटेड किंगडम।
This is about the formation of nation states of England. Britain. This is all about your chapter. Okay, thank you.